Hello students, this is Disha Shah and welcome to my YouTube channel. This is the third module of the topic time, speed and distance. And in this module we are going to cover exam level questions. First module में हमने basic concepts करे थे, formula देखा था, average speed, relative speed के concept करे थे, questions देखे थे. In the second module of time, speed and distance, we solve those questions wherein the speed का ratio is given, speed का difference is given, time का difference is given. And in this module we will solve exam level questions. So first let me share the screen with you. Let's start with the questions. First question. A person goes from Delhi to Jaipur, which is 240 km far. He covers some part of distance by bus and rest by train. Time taken by him to cover the complete distance is 6 hours. Average speed of bus is 30 km per hour and that of train is 55 km per hour. Find the distance covered by person going by train. ठीक है, so Delhi to Jaipur the person is going, this distance is 240 km and the total time taken to complete this distance is 6 hours. So from this can we say that the average speed during the entire journey is 240 divided by 6, that is 40 km per hour. Can we say this? मतलब on an average of 40 km per hour की speed से गया है. But he has taken two mode of transport, one is bus, one is train. बस का एवरेज स्पीड इज 30, ट्रेन का एवरेज स्पीड इज 55. यू नीड टू फाइंड कि भाई ट्रेन से उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है. So out of 240 kilometers, some distance is covered by train. That distance you need to find out. Okay, so यहाँ पर actually में we are going to use the combination of time, distance and speed and the mixture and alligation. क्योंकि ये question mixture alligation से बनेगा easily. So he is using two mode of transport. One is bus and one is train. Bus का average speed is 30 km per hour. ट्रेन का एवरेज स्पीड इज 55 किलोमीटर पर आवर एंड टोटल जर्नी का एवरेज स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर. तो यहां से अगर हम मिक्सचर एलिगेशन का ट्रिक लगाए तो दिस रेशियो इज कमिंग 55 minus 40 15 and 40 minus 30 is 10. So रेशियो इज 3:2. ठीक है, स्पीड एंड टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो ये जो रेशियो आया है ना, ये किसका रेशियो बन के आया है? ये जो रेशियो आया है ये टाइम का रेशियो बन के आया है. कौन सा रेशियो बन के आया है? टाइम का. इट मींस कि बस से उसे 3 यूनिट्स का टाइम लग रहा है ट्रैवल करने में एंड ट्रेन से उसे 2 यूनिट्स का टाइम लग रहा है ट्रैवल करने में. नाउ वी नीड टू फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन. डिस्टेंस के लिए वी शुड नो द स्पीड एंड वी शुड नो द टाइम. नाउ ट्रेन का स्पीड तो हमें पता है, इट इज 55 किलोमीटर पर आवर. अगर हमें टाइम मिल जाता है कि वो ट्रेन में कितने टाइम तक बैठा था, वी कैन फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन. तो देखो ट्रेन में वो एक्चुअली में कितने टाइम तक बैठा है. सो ये जो पार्ट है, कैन आई से दिस पार्ट इज 2/5 ऑफ द टोटल टाइम, but actually the time is 6 hours. It is not 5 hours, so we have to multiply by 6. Okay, so this is the time taken by the person to travel by the train. तो इतने टाइम तक वो ट्रेन में बैठा रहा था and we know the speed, so we can find the distance travel in the train. ठीक है, so distance is equal to speed into time. ट्रेन का स्पीड इज 55 किलोमीटर पर आवर और टाइम लग रहा है 2/5 6. ठीक है, so 20. So it is 11 into 12. 11 into 12 होता है 132 किलोमीटर. ठीक है, so distance travel by train is 132 किलोमीटर. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अपने इतना इजी नहीं है ये क्वेश्चन, क्योंकि हमने मिक्सचर एलिगेशन से किया इसलिए बहुत जल्दी हो गया. ठीक है, हाँ अगर इसमें डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस पूछा होता, ट्रेन की जगह पे बस पूछा होता, तो हमारा आंसर क्या बनता? फिर हम बस के लिए जाते. बस का टाइम का रेशियो क्या है? इट इज 3/5 ऑफ 6 और बस का स्पीड है 30. इसको सॉल्व करते तो यहाँ से ये आंसर मिल जाता. ये इसको सॉल्व करते तो ये 6 into 6 36, 36 into 3. तो उस केस में आंसर बनता 108. वैसे भी आप 240 में से 132 माइनस करोगे तो 108 बनने वाला है. ठीक है, सो हियर द आंसर इज ऑप्शन डी 132. नेक्स्ट, राम ट्रैवल्ड फ्रॉम अ प्लेस Z to P
at an average speed of 130 kilometer per hour. He traveled first 75% of the distance. So मान लो ये 75% of the distance है, 3/4 of the distance in 2/3 of time and rest at an average speed of x kilometer per hour. Find the value of x by 2. SSC CGL 2022 का ये क्वेश्चन है. The thing is that कि Z और P का sorry, Z and P का डिस्टेंस इज नॉट गिवन. तो कुछ तो चीज यहाँ पर अज्यूम करनी पड़ेगी. तो देखो यहाँ पर स्पीड दिया है 130 किलोमीटर पर आवर. तो यही मान के चलते हैं कि Z एंड P के बीच का डिस्टेंस है 130 किलोमीटर. सो 130 किलोमीटर ट्रैवल करने में अगर ये डिस्टेंस है, कैन आई से इट वुड हैव टेकन 1 आवर, क्योंकि एवरेज स्पीड है 130 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 130 किलोमीटर ट्रैवल करने में उसे 1 घंटा लगा होगा. अच्छा, उसमें देखो दो सिचुएशन है. फर्स्ट सिचुएशन में 75% ऑफ द डिस्टेंस इन 2/3 ऑफ द टाइम. तो 75% डिस्टेंस यानी कि 3/4 इंटू 130, 75% यानी कि 3/4, राइट. इतना डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम गया उसे? 2/3 ऑफ टाइम. 2/3. इसको मैं फिलहाल के लिए 75% लिखती हूँ. चलिए, तो 75% डिस्टेंस कवर करने में 2/3 ऑफ द टाइम जा रहा है. तो कैन आई से कि रिमेनिंग 25% डिस्टेंस कवर करने में 1/3 टाइम गया होगा. 1/3 ऑफ टोटल टाइम. 25% डिस्टेंस कवर करने में 1/3 ऑफ द टाइम गया होगा. यहां से हमें x मिल जाएगा. x इज द एवरेज स्पीड. इसका एवरेज स्पीड है x. वी नीड टू फाइंड x by 2. तो पहले x निकालेंगे, फिर x by 2 निकालेंगे. ठीक है. सो x इज नथिंग बट द एवरेज स्पीड. और स्पीड कितना है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस इज 25% ऑफ द टोटल डिस्टेंस. टोटल डिस्टेंस हमने 130 अज्यूम किया है. सो इट इज 25% ऑफ 130. 25% कैन बी रिटर्न एज 1/4 into 130. This is how we can write. और इसके लिए कितना टाइम लगा है? तो टोटल टाइम इट इज 1 hour. So 1/3 of 1 hour. 1/3 of 1 hour is 20 minutes. So 20 minutes can be written as 20/60, क्योंकि हमें आर में कन्वर्ट करना है, बट तो 60 को ऊपर भेज देते हैं. So this is the value of x. लेकिन हमें x नहीं निकालना है, हमें x by 2 निकालना है. तो जो भी आंसर आएगा उसे 2 से डिवाइड कर दे. तो क्यों ना सब कुछ यहाँ पर ही एक साथ में कर दे, बेटर रहेगा. इसको देख के लग रहा है कि ये पॉइंट में जाने वाला है. एनीवेज, ओके. 13 3 जा 390. तो इट इज 390/8. 390/8. 390/8 देख के लग रहा है कि ये मोटा मोटा, आप देख रहे हो इसको, अगर मैं 400 बना दूं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 400/8. सो मोटा मोटा 50 के आसपास जाएगा. 50 से थोड़ा कम, 50 से थोड़ा कम एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन बी, 48.75. इसमें अच्छी बात ये थी कि इवन द आंसर अपना डेसिमल में था, बट द ऑप्शंस वेर वेरी फार. ये देखो, ये 51 है, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि दिस वैल्यू इज स्लाइटली लेस देन 50. 50 से थोड़ा छोटा है ये वैल्यू. सो आंसर हैज टू बी लेस देन 50. नेक्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस A and B is 200 किलोमीटर. A train runs from A to B with a speed of 75 किलोमीटर पर आवर. तो यहाँ से एक ट्रेन निकलती है, A से लेके उसे पहुंचना है B. The speed of the train is 75 किलोमीटर पर आवर. And another train runs from B to A with a speed of 85 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. Question is, what will be the distance between two trains in kilometer? You need to find the distance in kilometer 3 minutes before they meet. ठीक है. तो रास्ते में कहीं ये लोग मिलेंगे, डेफिनेटली यहाँ मिलेंगे, एग्जैक्टली सेंटर में तो नहीं मिलेंगे. सपोज दे विल मीट हियर. कुछ टाइम के बाद वो मिल जाएंगे. क्वेश्चन इज कि वो टाइम से 3 मिनट पहले कुछ तो गैप होगा. मान लो कि इस टाइम पे वो मिल रहा है, यहाँ पर वो मिल रहा है, तो 3 मिनट पहले वो ट्रेन, सपोज ये वाली एक ट्रेन यहाँ होगी और दूसरी वाली ट्रेन यहाँ होगी. सो यू नीड टू फाइंड दिस डिस्टेंस. ओके. तो ये ट्रेन 3 मिनट के पहले और ये ट्रेन का भी 3 मिनट के पहले. ठीक है. सो व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट कि इस ट्रेन ने, इस फर्स्ट वाली ट्रेन ने, सपोज दिस इज ट्रेन P एंड दिस इज ट्रेन Q. तो ट्रेन P ने 3 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, दैट वी विल फाइंड आउट. एंड ट्रेन Q 3 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, दैट वी विल फाइंड आउट.
and we will add both the distance, so we'll get the answer. Hmm? Okay, so we need to find the distance covered by train P in 3 minutes. Now train P जो है वो 1 आवर में, 1 आवर यानी कि 60 मिनट, 60 मिनट्स में 75 किलोमीटर कवर कर रही है. सो कैन आई से 1 मिनट में 75/60 कवर करेंगे इतना डिस्टेंस. सो 3 मिनट में कितना कवर करेंगे? कैन वी से दैट दिस डिस्टेंस इज 75/60 इंटू 3, यानी कि 75/20 इतना डिस्टेंस कवर करेंगे. करेक्ट. सिमिलरली ट्रेन क्यू का भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं कि ट्रेन क्यू विल कवर 85/20 किलोमीटर इन 3 मिनट्स. हमें दोनों का डिस्टेंस कवर ऐड करना है. सो P प्लस क्यू, ठीक है, दैट इज 75/20 प्लस 85/20, 8. तो ये दोनों 8 किलोमीटर का गैप होगा दोनों के बीच में बिफोर 3 मिनट्स ऑफ मीटिंग. सो आंसर इज ऑप्शन बी, 8. नेक्स्ट. Deepak goes to his office by covering half the distance in metro and other half in auto. तो exactly half distance वो metro में cover करता है और बाकी का other half he covers in auto. The total time taken by him to complete the journey is 50 minutes. Distance covered by metro in 35 minutes. So metro से उसे कम time लग रहा है, इसका मतलब है कि auto से उसे ज्यादा time लग रहा है. On a particular day, he goes to office by auto and return by auto. Find the total time taken by him to complete the journey. देखो 60 मिनट तो हो नहीं सकता बिकॉज द पर्सन इन टोटल ही इज टेकिंग 35 मिनट्स, 50 मिनट्स. ओके, इन टोटल ही इज टेकिंग 50 मिनट्स. उसमें से डिस्टेंस कवर्ड जो है वो मेट्रो में 35 मिनट्स में हो जाता है. पूरा डिस्टेंस अगर वो मेट्रो में जाए तो 35 मिनट्स में हो रहा है. इसका मतलब है कि ऑटो वाला डिस्टेंस वुड बी मोर देन 50. तो मोर देन 50 होगा, तो वन वे इट इज मोर देन 50, वन वे इट इज मोर देन 50. तो दोनों टाइम का मिला के कैन आई से इट वुड बी डेफिनेटली मोर देन 100 आने जाने का दोनों मिला के. सो ऑप्शन ए एंड बी इज नॉट पॉसिबल, इधर इट इज सी और डी. इस क्वेश्चन को देखो वंस अगेन वी विल यूज हियर द कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सचर एलिगेशन. सी ही इज ट्रैवलिंग बाय मेट्रो एंड ही इज ट्रैवलिंग बाय ऑटो. मेट्रो से ट्रैवल कर रहा है, ही इज टेकिंग 35 मिनट्स. टोटल जर्नी इज 50 मिनट्स. टोटल वाला हम यहाँ लिखते हैं. करेक्ट. सो हमें निकालना है ऑटो का टाइम. एंड वी नो कि ये जो डिस्टेंस है दैट इज हाफ ऑफ. सो दिस रेशियो इज 1:1. दोनों के बीच का रेशियो इज 1:1. इट मीन्स कि हियर द गैप इज 35 एंड 50. द गैप इज 15. तो यहाँ पर भी गैप जो है वो 15 का होगा. Here also the gap should be 15. So this has to be 65. It means कि distance covered by auto one way is 65 minute. So टू वे का कितना हो जाएगा? 65 का डबल, दैट इज 130. देखो हमें टोटल टाइम निकालना है ना, ऑफिस से जाने का और ऑफिस से घर आने का. सो द टोटल टाइम इज 130 मिनट्स. पूरा टाइम निकालना है. सिर्फ जाने का आने का नहीं, दोनों का. जाने का 65 मिनट्स, while coming back 65 minutes. So total it is 130 minutes. Once again, these are all not easy level of questions. इतने easy भी नहीं है ये question, moderate level के questions है. Next. Two cars P and Q start at the same time from A and B which are 120 kilometer apart. So there is point A and place B. These two places are 120 kilometer apart. So P and Q start at the same time. If two cars travel in the opposite direction, तो ये P ऐसे है और Q ऐसे. If both of them travel in the opposite direction, then they meet after 1 hour. ठीक है. And if they travel in the same direction.
P भी ऐसे ट्रैवल कर रहा है, Q भी ऐसे ट्रैवल कर रहा है, एंड इफ दे ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन, डेफिनेटली सिंस दे ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन दे विल टेक मोर टाइम. तो सपोज वो कहीं यहाँ जाके मिल गए, सो आफ्टर 6 hours दे आर मीटिंग, आफ्टर 6 hours. क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्पीड ऑफ P. ठीक है, तो स्पीड ऑफ P को हम बोलते हैं SP, एंड Q का स्पीड को हम बोलेंगे SQ. कैन वी से दिस? तो यहां से what is the time? Time is equal to what? Time is equal to distance upon speed. From the first case, can we say that the distance is 120, and what is the speed? When two objects are moving in the opposite direction, we have to add the speed. So speed is equal to SP plus SQ. और ये टाइम लग रहा है 1 घंटा. So from this I can say कि SP plus SQ is equal to 120. Correct? और अगर यहां हम आ जाए तो यहां से हम कह सकते हैं कि टाइम इज इक्वल टू 6 hours एंड टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सो 120. नाउ बोथ ऑफ देम आर इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो स्पीड का करेंगे डिफरेंस, सो इट इज SP माइनस SQ. So from this I can say कि SP minus SQ is equal to 120 by 6, that is equal to 20. हमें क्या निकालना है? हमें क्या निकालना है? स्पीड ऑफ कार P, यानी कि हमें निकालना है SP. निकाल सकते हैं, यस, आराम से निकाल सकते हैं. टू लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल, तो दिस इज SP minus SQ is equal to 20. दोनों को ऐड करोगे तो आई कैन से कि 2 into SP is equal to 140, so SP is equal to 70. Answer is option C. Next, without stoppage, a person travel a certain distance at an average speed of 18 km per hour, and with stoppage he covers the same distance at an average speed of 12 km per hour. This is a very tricky question and it's a very good question. How many minutes per hour does he stops? क्वेश्चन कुछ ऐसा है. एक आदमी अपनी कार लेके निकला है. अच्छा, इससे पहले लेट मी गिव यू वन एग्जांपल. सपोज यू आर गोइंग फ्रॉम प्लेस A टू प्लेस B by car, and your friend is going from place A to place B by bus. Definitely we can say कि distance is same in both the case. Correct? दोनों सेम टाइम पे निकल रहे हो, एंड कार का स्पीड एंड बस का स्पीड इज सेम. बस का स्पीड, कार का स्पीड सेम है. द ओनली थिंग कि कार है तो वो विदाउट हॉल्ट लेके जाएगी, और बस है तो बीच बीच में रुक के जाएगी. कौन जल्दी पहुंचेगे? क्या आप जल्दी पहुंचोगे या आपका फ्रेंड जल्दी पहुंचेगा? इन बोथ द केस डिस्टेंस इज सेम, सेम टाइम पे निकल रहे हैं. कार का स्पीड, बस का स्पीड सेम है, तो आइडियली सेम टाइम पे ही पॉइंट बी पे पहुंचना चाहिए था, बट दैट वॉन्ट हैपन बिकॉज कार कहीं रुकती नहीं है, जबकि बस, इट्स लोकल बस मान के चलो, तो वो रुक रुक के जाएगी, सब जगह पे, सब स्टेशन पे हॉल्ट करेगी. ठीक है, सो बस विल टेक मोर टाइम. सो द सेम थिंग इज हैपनिंग हियर कि विदाउट स्टॉपेज अ पर्सन इज ट्रैवलिंग विद स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर. यानी कि अगर वो रुक रुक के नहीं जा रहा है, तो suppose he has to go from place A to place B, which is, suppose this distance is 18 kilometer, so he can cover this distance in 1 hour. But वो रुक रुक के जा रहा है, तो क्या होगा कि 1 hour में he won't be able to cover this distance. वो 1 hour में suppose कोई एक पॉइंट C तक ही पहुंचा, which is at a distance of 12 kilometer. So he couldn't cover this remaining 6 kilometer का distance. ये जो 6 किलोमीटर बच गए वो उसे कवर नहीं कर पाया. स्पीड उतना ही था, इन बोथ द केस स्पीड इज सेम, बट स्टिल ही कुडंट कवर. क्यों? बिकॉज वो बीच में रुक गया था. सो क्वेश्चन इज हाउ मेनी मिनट्स पर आवर डज ही स्टॉप्स. 1 मिनट में वो कितना टाइम, सॉरी 1 घंटे में वो कितना मिनट रुका रखा, दैट इज द क्वेश्चन. सो कैन आई से वो इतना ही रुका होगा जितना टाइम उसे ये 6 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में लगा होता. अगर वो रुकता नहीं तो ये 6 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेता. क्योंकि वो रुक गया, सो ही कुडंट कवर दिस 6 किलोमीटर का डिस्टेंस. सो वी जस्ट नीड टू फाइंड आउट कि उस इंसान को ये 6 किलोमीटर कवर करने में कितना टाइम जाएगा. सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड.
कितना डिस्टेंस कवर करना है? 6 किलोमीटर। स्पीड क्या है? स्पीड इज 18, क्योंकि ये तो उसका यूजुअल स्पीड है। सो स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम इज 1/3 आवर्स। 1/3 आवर्स मतलब वी कैन से इट इज 20 मिनट्स। तो उसे 6 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में 20 मिनट्स लगेंगे, बट ही कुडन कवर, क्योंकि वो 20 मिनट्स तक खड़ा रह गया। सो आंसर इज 20 मिनट्स। ठीक है। हाँ, इस क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है, ये तो मैंने कॉन्सेप्ट बताया। कॉन्सेप्ट हमेशा हेल्प करता है। अगर आपको ट्रिक भूल गया ना, तो कॉन्सेप्ट से आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बट हाँ, अगर इसका ट्रिक होता सॉल्व करने का, तो आप ऐसे करोगे। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, तो आप ट्रिक के लिए क्या करोगे? यू विल टेक द डिफरेंस ऑफ दिस 18 - 12, दोनों स्पीड का डिफरेंस, डिवाइड बाय द ओरिजिनल स्पीड, द एक्चुअल स्पीड इज 18। और क्योंकि हमें पर आर निकालना है, पर आर, और ये आप सॉरी, ये आप देख रहे हो, ये आंसर मिनट्स में दिए हैं। पर आर यानी कि 60 मिनट्स करें, क्योंकि आंसर मिनट्स, आंसर जो है वो मिनट्स में दिए हैं। सो वी विल मल्टीप्लाई बाय 60। दिस विल गिव यू द आंसर। दिस विल गिव यू द आंसर। ये कितना हो रहा है देखिए, 6/18 इंटू 60, 20 मिनट्स। तो आप ये मेथड यूज कर सकते हैं, ये ट्रिक यूज कर सकते हैं। क्या करना है आपको इस पर्टिकुलर केस में, कि 18 एंड 12 का डिफरेंस लो, विच इज 6, डिवाइड बाय ओरिजिनल स्पीड 18, और उसको, क्योंकि पर आर के बारे में पूछा है और ऑप्शन में मिनट दिया है, तो आर को मिनट में कन्वर्ट कर देंगे, तो 60। 2 घंटे का पूछा होता तो 120 मिनट्स लिखते, 3 घंटे का पूछा होता तो 180 मिनट्स लिखते। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। A and B are two stations which are 380 kilometer apart. A man starts from A at 5:30 a.m. and travel towards B with a speed of 70 km per hour. Another man starts from B towards starts from B at 6:30 a.m. with a speed of 85 km per hour. Question is at what time do they meet? कब मिलेंगे? हमें पता है कि रास्ते में कहीं मिलने वाले। क्वेश्चन इज एट व्हाट टाइम। ये वंस अगेन दिस इज अ वेरी कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चन, कि दो स्टेशन है, दोनों लोग निकल रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, व्हाट टाइम विल दे मीट? नाउ लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग हियर। सी, दिस पर्सन इज स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशन ए एट 5:30, दिस वन इज स्टार्टिंग एट 6:30, यानी कि 1 घंटे के बाद। सो 5:30 से लेके 6:30 तक ओनली दिस पर्सन वाज मूविंग। करेक्ट। सो इसने 5:30 से लेके 6:30 तक, इस 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? इसका स्पीड है 70 km/h। तो कहना है कि 6:30 को सपोज वो इंसान यहाँ पहुंच गया, 6:30। सो टिल 6:30 कैन आई से दैट ही मस्ट हैव कवर्ड 70 किलोमीटर 1 घंटे में। अभी अभी 6:30 को ये भी दोनों स्टार्ट कर दिया। इसने तो स्टार्ट किया ही था, ये भी चलने लगा अभी। सो नाउ व्हाट इज द रिमेनिंग डिस्टेंस? कैन आई से द रिमेनिंग डिस्टेंस इज 380 माइनस 70, दैट इज इक्वल टू 310। सो 6:30 के बाद उनको 310 का डिस्टेंस कवर करना है। क्वेश्चन इज कि उसको कितना टाइम लगेगा? तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। रिमेनिंग डिस्टेंस इज 310, so that we will write. And since both of them are moving in the opposite direction, so now we can add the speed. तो स्पीड को ऐड कर देंगे। 140 प्लस 15, 155। ये दिख रहा है, ये साफ साफ डबल है, सो दिस इज 2 hours। इट मीन्स कि आफ्टर 6:30 दे विल टेक 2 hours टू मीट ईच अदर, यानी कि बाय 8:30 दे विल मीट। ओके, सो आंसर इज 8:30। आंसर इज 8:30। ठीक है। नेक्स्ट।
A man set out on cycle from Bina to Itarasi, and at the same time another man starts from Itarasi to Bina on cycle. So मान लो ये Bina है, this place is Bina, this place is Itarasi. दोनों ने at the same time they started on cycle. फिर रास्ते में कहीं मिलेंगे. So suppose they meet at point C. यहाँ मिल गए दोनों. After passing each other, they complete the journey in 16 and 25 hours respectively. मिलने के बाद ये वाला पर्सन था, उसे यहाँ पहुंचने में 16 hours लगे, और ये जो दूसरा वाला था उसे बिना पहुंचने में 25 hours लगे. अच्छा, इतने से हम क्या बता सकते हैं? सपोज दिस इज पर्सन ए, दिस इज पर्सन बी, तो किसका स्पीड ज्यादा है? कैन वी से दिस? यस, बाय ऑब्जर्वेशन वी कैन डेफिनेटली से कि ए का स्पीड इज मोर देन पर्सन बी का स्पीड, क्योंकि मिलने के बाद ए को कम टाइम लग रहा है और मिलने के बाद बी को ज्यादा टाइम लग रहा है, तो ए का स्पीड ज्यादा होगा. क्वेश्चन इज एट व्हाट रेट डज द सेकंड मैन साइकिल, यानी कि बी का आपको स्पीड निकालना है, इसका स्पीड निकालना है. इफ द फर्स्ट साइकिल एट 15 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ए का स्पीड दिया है हमें, स्पीड ऑफ ए इज 15 किलोमीटर पर आवर. ये क्वेश्चन बाकी सब क्वेश्चन से बहुत डिफरेंस है, क्योंकि इसमें कुछ दिया नहीं है. डिस्टेंस बिटवीन बीना इटारसी इज नॉट गिवन, ए का स्पीड इज गिवन, बी का स्पीड नॉट गिवन, दैट वी नीड टू फाइंड आउट, एंड मिलने के बाद का टाइम दिया है. ओके, सो सच टाइप ऑफ क्वेश्चन में देयर इज अ फॉर्मूला, एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला लगाना है एंड यू विल गेट द आंसर. इस क्वेश्चन को आप इक्वेशन बना के भी सॉल्व कर सकते हो, जिसमें बहुत टाइम जाता है, बट वी हैव अ फॉर्मूला. फॉर्मूला, व्हाट डज द फॉर्मूला सेज? फॉर्मूला कहता है कि टाइम टेकन बाय द फर्स्ट मैन टू रीच बी आफ्टर मीटिंग एंड टाइम टेकन बाय द सेकंड मैन टू रीच first point after meeting is this. What is the relation? Relation is this कि speed of first man divided by speed of second man, यानी कि s1 by s2 is nothing but square root of time taken by the second person divided by time taken by the first person. So s1 by s2 is equal to under root of t2 by t1. This formula you need to use. हाँ, ये formula, this is a conditional formula. तो इस फॉर्मूला को आप कहीं पर भी नहीं लगा सकते. आपको सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला तभी यूज करना है जहां पर मिलने के बाद का टाइम दिया हो. आफ्टर मीटिंग द टाइम इज गिवन, देन ओनली यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, और कहीं पर भी ये फॉर्मूला नहीं लगाना है. तो दिस इज नॉट अ नॉर्मल फॉर्मूला, इट्स अ कंडीशनल फॉर्मूला. ठीक है. नाउ हमें क्या क्या दिया है? हमें फर्स्ट पर्सन का स्पीड दिया था एंड दैट इज s1 इज गिवन. s1 was 15 किलोमीटर पर आवर. s2 we need to find out. t1 t2 is given. t1 is 16 and t2 is 25. Put the values, you will get the answer. So 15 upon s2 is equal to under root of t2 by t1. So 25 by 16. 25 by 16, under root of 25 by 16 can be written as 5 by 4. So s2 is equal to 15 into 4 by 5. So इसका सेकंड वाले का स्पीड कम है, जो कि हमने पहले भी बताया था. So that answer is 12 किलोमीटर पर आवर. परफेक्ट. अच्छा, अगर आपको यहां से पूछा जाता कि बिना से इटारसी का डिस्टेंस बताओ, कितना होगा बिना से इटारसी का डिस्टेंस, so उसके लिए आप क्या करोगे? वंस अगेन s1 इंटू t1 प्लस s2 इंटू t2. ये पहले वाले पर्सन का स्पीड s1 है, उसे t1 टाइम लग रहा है. पहले वाले पर्सन का टाइम s1 है, उसको t1 टाइम लग रहा है, तो यहाँ पर उसका स्पीड है s1 फर्स्ट वाले का, और उसको टाइम लग रहा है t1. सो डिस्टेंस इज s1 t1. सेकंड वाले पर्सन का स्पीड इज s2, टाइम लग रहा है t2, तो डिस्टेंस इज s2 t2. तो टोटल डिस्टेंस इज s1 t1 प्लस s2 t2. तो अगर आपको कोई पूछे बिना से इटारसी का डिस्टेंस, सो व्हाट यू विल डू? s1 इंटू 16 प्लस t2, और s2 कितना है? s2 is 12 into t2 25. This will give you the answer. 16 into 15 कितना होता है? 240. And 25 into 12. 25 into 12 आप ऐसे कर सकते हो, 6 into 50. So that is 150. Sorry,
300, 150 नहीं 300, ठीक है। सो द टोटल आंसर इट इज 540। दिस इज द आंसर। ये डिस्टेंस पूछा होता तो आप ये निकाल लेते हैं। नेक्स्ट, this is a wonderful question, very very good question. A walks around a circular field at the rate of 1 round per hour. So एक circular field है, A उसके ऊपर वॉक कर रहा है, तो A का स्पीड इज 1 राउंड पर आवर. B walks around a circular field at the rate of 6 rounds per hour. यानी कि B जो है वो 1 घंटे में 6 राउंड्स लगा लेता है. ए ए शायद चल रहा होगा, बी दौड़ रहा होगा, करेक्ट. तो बी का स्पीड इज मच मोर देन ए का स्पीड. नाउ दिस स्टार्ट इन द सेम डायरेक्शन एट 7:30 AM. तो 7:30 को दोनों ने स्टार्ट कर दिया, सेम डायरेक्शन. सो सपोज दे आर वॉकिंग लाइक दिस इन दिस डायरेक्शन, ठीक है. फर्स्ट, नाउ द क्वेश्चन इज दे शैल फर्स्ट क्रॉस ईच अदर एट. दोनों एक दूसरे को कब क्रॉस करेंगे. नाउ आप देख रहे हो कि ए का स्पीड बी के स्पीड से कंपेयर में काफी कम है. तो बी तो जब ये पूरा चक्कर लगाएगा ऐसे, तब ए जो है कहीं यहां कहीं पहुंचा होगा सपोज. तो जब अब बी पूरा एक क्रॉस करेगा ए को, दैट टाइम वी नीड टू फाइंड आउट कि द टाइम एट विच द बी विल क्रॉस ए, क्योंकि बी का स्पीड ज्यादा है तो बी क्रॉस करेगा. नाउ दिस इज एन इजी क्वेश्चन, बट इसमें कंफ्यूजन सिर्फ इसीलिए होता है, दो रीजन है कि स्टूडेंट्स इसमें फंसते हैं कि दिस इज नॉट अ लीनियर पाथ, एक सर्कुलर पाथ है, तो थोड़ा कंफ्यूजन उसमें है. सेकंड थिंग कि स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में नहीं दिया, स्पीड इज गिवन इज राउंड पर आवर. नाउ बोथ ऑफ देम आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, सो स्पीड का क्या करना होता है, वी हैव टू टेक द डिफरेंस ऑफ द स्पीड. तो एक्चुअल स्पीड इज नथिंग बट 6 round minus 1 round, that is 5 round per hour, correct. When two objects are in the same direction, we have to take the difference of the speed. तो एक्चुअल स्पीड हम कंसिडर करेंगे 5 राउंड्स पर आवर. अच्छा, बी को कितना डिस्टेंस कवर करना है ए को क्रॉस करने में, कहना से उसको 1 राउंड एक्स्ट्रा लगाना है, तब जाके वो ए को क्रॉस करेगा. सो वी नो द डिस्टेंस, वी नो द स्पीड, कैन वी फाइंड द टाइम. ठीक है, सो टाइम क्या हो जाएगा, time is equal to distance upon speed. So distance is 1, speed is 5. So answer is 1 by 5 hours. 1 by 5 hours, तो इसको हम मिनट में लिख देते हैं. So 12 minutes. It means कि B will take 12 minutes to cross A. यानी कि जब B यहाँ पर आएगा A को क्रॉस करने के लिए, तब 12 मिनट हो चुके होंगे. And they started at 7:30, तो 7:30 plus 12, तो 7:40 को B will cross A. B will cross A. ठीक है. अच्छा, इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा चेंज करती हूँ. सपोज ये सेम डायरेक्शन ना होते हुए अपोजिट डायरेक्शन होता, अपोजिट. तो मान लो कि A ऐसे चल रहा है एंड B इज वॉकिंग लाइक दिस, बोथ आर इन द अपोजिट डायरेक्शन. तो रास्ते में कहीं मिलेंगे, यहाँ पर कहीं मिलेंगे सपोज वो लोग. So question is how much time it will take. Definitely here now the answer is less than 7:42, क्योंकि opposite direction में चले तो जल्दी मिल जाएंगे. क्या चेंज होगा क्वेश्चन में, चेंज क्या होगा, एक ही चेंज होगा कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. दोनों को मिलके एक पूरा राउंड कवर करना है. और स्पीड क्या होगा, नाउ सिंस बोथ ऑफ देम आर इन द अपोजिट डायरेक्शन, वी हैव टू ऐड द स्पीड. तो इट इज 1 + 6, तो 7. इतना टाइम लगेगा, तो इट इज 60 by 7 minutes. So this is approximately 8 minutes and 4 by 7. So 8 minutes से थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा. That is the answer. Next, an athlete runs 8 times round a circular field of radius 7 meter in 3 minutes 40 seconds. Find his speed in kilometer per hour. ठीक है. तो एक एथलेट है, उसे एक सर्कुलर फील्ड जिसका रेडियस है 7 मीटर, ये इसके 8 टाइम्स उसको राउंड लगाता है
in how much time? 3 minutes 40 seconds. You need to find the speed. स्पीड के लिए हमारे पास डिस्टेंस होना चाहिए. अभी सोचो एक राउंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा. कैन वी से ही विल कवर दिस मच डिस्टेंस. और ये डिस्टेंस क्या है? दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल. सो कैन वी से दैट वन राउंड का डिस्टेंस इज 2 pi r, which is nothing but 2 into pi can be written as 22 by 7 into 7. So 44 meter is the circumference of the circle. तो एक राउंड का डिस्टेंस 44 मीटर है, बट वो 8 राउंड्स लगाता है. एक राउंड नहीं, 8 राउंड्स. सो कैन आई से 8 राउंड का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? कैन वी से इट इज 44 into 8. So this is nothing but the distance. And to cover this much distance, he is taking 3 minute 40 second. Now what we will do, we will write the time in second. So 3 minute can be written as 180 second plus 40 second, that is 220 second. ठीक है, यहां से हमको स्पीड मिल जाएगा. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस कितना है? 44 into 8. दिस इज इन मीटर. टाइम हमने लिखा है सेकंड में, सो इट इज 220 सेकंड. ठीक है. बट वी नीड टू फाइंड द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर. ये तो स्पीड आया है मीटर पर सेकंड में. मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है, बड़े यूनिट की ओर जाना है, तो बड़ा नंबर पहले लिखेंगे. सो 18 by 5. ठीक है. 44 5s are this. So this is nothing but 18 8s are 18 8s are 144. So option C is the correct answer. Next, Mr. Khanna running at 20 meter per second is chasing Lucky, who is at a distance of 2000 meter from him and running at 10 meter per second. So ये है मिस्टर खन्ना और ये है लक्की. मिस्टर खन्ना का जो स्पीड है वो है 20 मीटर पर सेकेंड. लक्की का स्पीड इज 10 मीटर पर सेकेंड. लक्की इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2000 मीटर. डेफिनेटली मिस्टर खन्ना वुड बी एबल टू कैच लक्की. वो पकड़ लेंगे. Now he has crazy dog Sheru with him, who keeps moving to and fro between Khanna and Lucky at a speed of 30 मीटर पर सेकेंड. तो मिस्टर खन्ना के पास एक डॉग है शेरू, जिसका स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड. सबसे फास्ट यही दौड़ रहा है. अच्छा, शेरू का काम क्या है? शेरू keeps doing so until Mr. Khanna catches Lucky. Find the total distance traveled by शेरू. तो शेरू क्या करता है ना कि जब तक ये खन्ना लकी को नहीं पकड़ लेगा तब तक शेरू खन्ना और लकी के बीच में आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे दौड़ता रहेगा. कब तक दौड़ेगा? जब तक खन्ना लकी को पकड़ नहीं लेते. यू नीड टू फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय शेरू. डिस्टेंस निकालना है. ठीक है. इस क्वेश्चन को करने का सिर्फ एक तरीका है. अगर आप गलती से भी गलत डायरेक्शन में चले गए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो शेरू के जैसे टू एंड फ्रो होते रहेंगे. यू वॉन्ट गेट द आंसर. So there is only one method through which you can solve the question. क्या करना है? बेसिकली हमें निकालना है डिस्टेंस कवर्ड बाय शेरू. डिस्टेंस का फॉर्मूला वी नो कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. शेरू का स्पीड तो पता है, सिर्फ ये नहीं पता है कि शेरू कितने टाइम तक दौड़ रहा है. अगर वो मिल जाता है वी विल गेट द आंसर. अच्छा, शेरू कब तक दौड़ेगा? शेरू तब तक दौड़ेगा जब तक खन्ना लक्की को पकड़ नहीं लेते. ठीक है ना. तो हम एक काम करते, क्यों ना हम ये फाइंड आउट कर ले कि खन्ना को लक्की को पकड़ने में कितना टाइम जाएगा, क्योंकि उतने ही टाइम तक शेरू दौड़ेगा. तो हम ये निकाल लेते कि खन्ना को लक्की को पकड़ने में कितना टाइम जाएगा. टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. खन्ना हैज टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 2000 मीटर टू कैच लक्की, and since both of them are running in the same direction, so we have to take the difference of the speed. So 20 minus 10.
So Khanna will take 200 seconds to catch Lucky. और तब तक ये शेरू दौड़ता रहेगा. So it is 30 into 200. 6,000 meter is the answer. Option D is the correct answer. It's a very good and very tricky question. ऐसे करोगे तो ही आंसर बनेगा, वरना बनेगा नहीं. Now, ये भी एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो बहुत एग्जाम्स में देखा जाता है. A train M leaves Meerut at 5 a.m. and reaches Delhi at 9 a.m. So मीरत से वो 5 को निकलती है, दिल्ली को 9 को पहुंचती है. ठीक है, यानी कि उसको 4 घंटे लगते हैं दिल्ली पहुंचने में. परफेक्ट. Another train leaves Delhi at 7 a.m. reaches Meerut at 10:30. 7 को निकलती है, मीरठ 10:30 पहुंचती है. यानी कि कितना टाइम लगा? वी कैन से 3.5 आवर्स लगे उसे मीरठ पहुंचने में. तो 3.5 आवर्स कैन बी रिटन एज 7/2 आवर्स. करेक्ट. फ्रॉम दिस वी कैन इजीली मेक आउट कि ये जो फर्स्ट वाला ट्रेन है, सपोज इसको हम नाम दे दे ए, इस ट्रेन को नाम दे दे ए, इस ट्रेन का नामकरण कर दे बी. सो ट्रेन ए इज स्लो कंपेयर टू ट्रेन बी, क्योंकि ट्रेन बी को 3.5 आवर्स लग रहे, ट्रेन ए को 4 आवर्स लग रहे. Question is at what time two trains shall cross each other? पूरे क्वेश्चन में टाइम के अलावा कुछ भी नहीं दिया है. ना ट्रेन ए का स्पीड दिया है, ना ट्रेन बी का स्पीड दिया है, ना मेरठ से दिल्ली का डिस्टेंस दिया है. सो डिस्टेंस इज मिसिंग, स्पीड इज मिसिंग. ओनली थिंग दे हैव गिवन कि टाइम कितना लग रहा है मेरठ से दिल्ली एंड दिल्ली टू मेरठ. ओके, नाउ लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. अभी आप देख रहे हो दोनों ट्रेन का टाइम भी सेम नहीं है. दिस ट्रेन इज स्टार्टिंग एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग, 9 o'clock पहुंचती है. दिस वाला ट्रेन इज स्टार्टिंग एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग, 10:30 को पहुंचती है. यानी कि ये जो दूसरी वाली ट्रेन है ना, ट्रेन बी, ये 2 घंटे के बाद स्टार्ट हो रही है. ये 5 बजे, ये 7 o'clock. सो कैन आई से कि जब ये ट्रेन बी 7 o'clock को अपना जर्नी स्टार्ट करेगी, तब तक ए ने कुछ तो डिस्टेंस कवर किया होगा. हाउ मच डिस्टेंस वुड हैव ए कवर्ड? कैन आई से 7 o'clock तक उसने आधा डिस्टेंस कवर कर लिया होगा, बिकॉज द टोटल जर्नी इज 5 a.m. to 9 a.m. तो 7 a.m. को ये ट्रेन आधा डिस्टेंस कवर कर लिया. तो ये ट्रेन पहुंच गई यहाँ पर 7 को. तो जो भी आंसर होगा वो 7 o'clock के बाद का ही होगा. सो इसी में से आप देख रहे हो हर जगह पे ऑप्शन में भी वैसा ही दिया है. Now how we will solve this question? Here you can see the distance is missing. तो क्यों ना डिस्टेंस को कुछ अज्यूम कर ले. Let us assume the distance is 2x. Now why I am assuming distance 2x and not x? ये इसीलिए क्योंकि ये हमको आधा आधा करना है ना, इसीलिए. ठीक है, तो हम एक होल नंबर में रहे. Now what we will do now, we will try to find the speed of A and we will try to find the speed of B, okay, in the form of x. क्योंकि हमें क्या निकालना है? What time the train shall cross each other. तो देखो टाइम निकालना है हमें. टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. दोनों ट्रेन को मिलके कितना डिस्टेंस कवर करना है? कितना डिस्टेंस कवर करना है? देखो ये 7 o'clock तक ट्रेन ए ने ऑलरेडी x डिस्टेंस इज ऑलरेडी कवर्ड. सो रिमेनिंग डिस्टेंस x कवर करने में उनको कितना टाइम जाएगा वही निकालना है, 7 o'clock के बाद का टाइम. एंड since both the trains are moving in the opposite direction, तो स्पीड हम कंसिडर करेंगे स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन प्लस स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन. ठीक है, एस ए प्लस एस बी. यानी कि हमें एस ए एंड एस बी पता होना चाहिए. नहीं भी पता है तो भी कम से कम एक्स के फॉर्म में पता होना चाहिए. सो फ्रॉम दिस वी विल ट्राई टू फाइंड द स्पीड ऑफ ए. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. पूरा जो डिस्टेंस है दैट इज 2x, और 2x डिस्टेंस कवर करने में ट्रेन ए इज टेकिंग 4 hours. So we can say कि speed of train A is 2x by 4. Similarly, speed of train B, 2x distance cover करने में train B is taking 7/2 hours. तो 7 यहाँ लिखेंगे, 2 ऊपर भेज देते हैं. So this train is taking 4x by 7. ठीक है, so we actually we found the speed in the form of x, no problem. So this is x.
we need to find SA plus SB. SA plus SB is 2x by 4 plus 4x by 7. भी आप सोच रहे हो ये x तो हमें पता नहीं है, कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन को देख के साफ साफ दिख रहा है कि x अपना गायब होने वाला है. सो व्हाट विल डू ना, यहाँ पर हम पहले तो 2x by 4 plus 4x by 7 ये सॉल्व कर लेते हैं. कितना हो रहा है, ये कितना हो रहा है? दिस इज 14x plus 16x upon 28. So this is 30x upon 28. ठीक है. So time is equal to x divided by denominator is 30x divided by 28. So time is equal to x into 28 upon 30x. X cancel. So 28 by 30 is 14 by 15 hours. यानी कि 7 बजने के बाद it will take 14 by 15 hours for the train to meet each other. तो 14 by 15 hours को हम मिनट में क्या लिख सकते हैं? इनटू मिनट में लिखने के लिए we will say 56 मिनट, यानी कि 7 बजने के बाद और 56 मिनट लगेगा to meet each other. So the time is 7:56. They will meet 7:56. ठीक है. क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन बहुत क्लोज थे, ये 7:56, ये 8, ये 8:10, तो सॉल्व करना पड़ेगा. अदरवाइज थोड़े ऑप्शंस में गैप होता तो बाय ऑब्जर्वेशन वी कुड हैव गॉट द आंसर. नेक्स्ट, द ड्राइवर ऑफ अ कार which is traveling at a speed of 75 km per hour locates a bus 80 meter ahead of him. तो मान लो ये कार है, this is a car. Speed of the car is 75 km per hour. और यहां पर एक बस है. ठीक है. तो ये बस जो है वो कार से 80 मीटर आगे है. ठीक है. तो वो कार वाला देख रहा है कि एक बस है जो उसके आगे चल रही है, 80 मीटर आगे चल रही है. 15 सेकंड के बाद he finds that bus is 40 मीटर behind the car. यानी कि 15 सेकंड के बाद कार आगे चली गई, कार सपोज यहां आ गई और बस यहां रह गई. ठीक है. ये बस, ये कार. So bus is now 40 meter behind the car. Bus is now 40 meter behind the car. It means कि कार का स्पीड ज्यादा है क्योंकि उससे बस को ओवरटेक कर लिया है. क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बस. तो कार का स्पीड 75 है, बस का स्पीड कम होगा. तो एवरीवेयर इन द ऑप्शन यू कैन सी कि एवरीवेयर द स्पीड इज लेस देन 75. पॉइंट में आंसर है और बहुत क्लोज है, तो इसको सॉल्व ही करना है. सो लेट्स सी हियर व्हाट इज हैपनिंग. सो देयर इज अ स्टोरी ऑफ 15 सेकेंड. इस 15 सेकंड में कार ने बस को ओवरटेक कर लिया और इस 15 सेकंड में कार ने कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर किया कंपेयर टू बस. तो पहले तो कार 80 मीटर पीछे थी, फिर कार 40 मीटर आगे चली गई, यानी कि कहना इसे कि कार ने 120 मीटर का एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर किया टू इन दिस 15 सेकंड. ओके. सो वी नो कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ठीक है. what we will do here is तो speed is equal to distance upon time. Okay. तो यहाँ पर speed क्या होगा? Speed is nothing but car and bus, they are moving in the same direction. So can I say speed is nothing but car का speed minus बस का speed. ये हो जाएगा speed, कार का speed minus बस का speed. ठीक है. So SC minus SB is equal to speed is equal to distance upon time. Distance upon time. Distance है 120 मीटर का और टाइम लग रहा है 15 सेकंड का. ठीक है. बट द प्रॉब्लम हियर इज ऑफ द यूनिट्स. यहां से जो स्पीड मिल के आएगा, डिस्टेंस इज इन मीटर, टाइम इज इन सेकंड. तो स्पीड मिल के आएगा वो मीटर पर सेकंड में होगा, जबकि एक्चुअली में ये कार का स्पीड तो किलोमीटर पर आवर में दिया है. सो व्हाट वी विल डू, वी विल कन्वर्ट दिस स्पीड इनटू किलोमीटर पर आवर. सो वी विल राइट कि 120 by 15 मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाने के लिए वी हैव टू what we have to do is 18 by 3, sorry 18 by 5, 18 by 5. ठीक है. Now this is 8. So this is nothing but 8 into 18,
that is 144 by 5. यानी कि SC minus SB is 144 by 5. Now car का speed is 75. So from this we can say कि bus का speed is कार का speed minus 144 by 5. ठीक है, कार का speed है 75. So it is 75 minus 144 by 5. हम क्या करते हैं 144 by 5 की वैल्यू लिख लेते हैं. कोई भी नंबर को 5 से अगर हमें डिवाइड करना है, कोई भी नंबर को 5 से अगर हमें डिवाइड करना है तो क्या करते हैं हम, नंबर का डबल करके पॉइंट लगाते. तो 144 का डबल होता है 28, 288 बीच में पॉइंट. सो 75 माइनस 28, तो 0.2 आएगा एंड में, बट 0.2 भी दो जगह पे है. सो व्हाट विल डू इज 75 माइनस 29. सो दिस इज 15 माइनस 9 is 6 and 6 minus 2 is 4. So it is 46.2. So option D is the correct answer. ठीक है. So in this video we have covered exam level questions of the topic time, speed and distance. Time, speed and distance is a very tricky topic. बहुत varieties के questions बनते हैं and I hope you have understood this particular module. In the next class we will solve the questions based on racing. Questions based on racing. ये बहुत easy questions होते हैं, काफी easy questions है compared to what we have done. So thank you for watching my video, and if you like the way I teach, then please subscribe to my channel and keep on watching math videos and keep on practicing math, because math is easy. Thank you.